Okay, dear students, once again, welcome to your first lesson of Geography, Class 9, India, Size and Locations. You have revised the first and second paragraphs and the second page, second column also, and now we are proceeding towards an important question which is generally asked for long answer. The question is, what is the importance of India's central location on the globe? This is the globe, and what is the importance of India's central location on the globe? How this location is important? So India has a very long coastline, as you are seeing. What is the length of coastline? Tell me the length of coastline. 7,000? 7,516.6 किलोमीटर. हाँ, वेरी गुड. ऐसे याद रखना, इंडिया का कोस्टलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कोस्टलाइन का क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि ये हमको सी रूट देता है. Coastline is very important because it connects India with different parts of the world through the sea routes. This is the western coast of India and this is the eastern coast of India. From the western coast, we are well connected to these countries like Africa, right? And at this end point of Africa is known as Cape of Good Hope. We are well connected to Western, Eastern Africa and Southern Africa, all these regions. And we are well connected to the European countries through this part, through the Red Sea. What you are studying just now? You are studying about the importance of central location of India on the globe. You have to know that how India is well connected to every part of the world. By giving example, you have to explain that how India is well connected to every part of the world. So by giving these examples, you will write your answer. India is well connected through Red Sea and Suez Canal towards the European world and also towards the Eastern USA or eastern part of North America, right? And India is well connected through African countries also and through towards the South American countries, just through crossing the Indian Ocean. है ना? ऐसे करके तुमको एग्जाम्पल देना है. अब यहाँ देखो एक चीज हम बताना चाहते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कल पढ़े थे ना, स्ट्रेट. तो यहाँ तुम पाक स्ट्रेट के बारे में पढ़े थे. Pak Strait lies between India and Sri Lanka. And this strait is very important strait of the world. This is known as Strait of Malacca. Are you able to see the pointer? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. तो यहाँ देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है. ये स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बिटवीन टू लैंड मासेस. तो ये है मलेशिया और ये क्या है, कौन सा आइलैंड है, सुमात्रा. तो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है. तो जो शिप चलते हैं ना यहाँ से कोलकाता के साइड से या बांग्लादेश के साइड से, ये सब इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए शॉर्टकट है, ये यहाँ से निकल के ईस्ट पैसिफिक में आ जाते हैं. तो ये किस लिए बताया जा रहा है कि ये बताने के लिए कि इंडिया इज वेल कनेक्टेड टू द ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ एशिया आल्सो. इंडिया इज वेल कनेक्टेड विद ईस्टर्न एशिया. इंडिया इज वेल कनेक्टेड टू साउथ ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न एशिया आल्सो. तो तुमको ये सारे एग्जांपल देके बताना है कि इंडिया कैसे वर्ल्ड से कनेक्टेड है. अब देखो इंडिया का ये जो ईस्टर्न साइड है, तो यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यहाँ देखो ये न्यूजीलैंड है, देख रहे हो न्यूजीलैंड, ये पॉइंटर दिखा रहा है. तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी हम अगर अपने कंट्री से साउथ ईस्ट की तरफ चले तो वी आर वेल कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आल्सो एंड दीज ऑल इंडोनेशियन आइलैंड्स, राइट. So you have to explain how India's central location is very important. India is located at the head of the Indian Ocean.
What is the location of India? India is located at the head of the Indian Ocean. Head of the Indian Ocean means at the north of Indian Ocean. Indian Ocean के नॉर्थ में इंडिया का लोकेशन है और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो स्ट्रेटेजिकली का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड तुमको मिलेगा स्ट्रेटेजिक. स्ट्रेटेजिक मीन्स रिलेटिंग टू गेनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म मिलिट्री एडवांटेज. लॉन्ग टर्म मिलिट्री एडवांटेज के लिए जो प्लानिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक. तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया का क्योंकि इंडिया के पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन है. हाउ लॉन्ग इज द कोस्ट लाइन? 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन. एंड इंडिया has the benefit of trans-Indian ocean route. Trans मतलब एकदम अक्रॉस द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन के एकदम ईस्टर्न एंड से वेस्टर्न एंड तक हम जा सकते हैं इंडिया के साउथ में. तो इसी को कहते हैं ट्रांस इंडियन ओशन रूट. तो ये सारे इंपॉर्टेंस है इंडिया के सेंट्रल लोकेशन के कि ऐसी जगह पर इंडिया लोकेटेड है वर्ल्ड में कि ये दुनिया के हर हिस्से से वेल कनेक्टेड है. ये लैंड लॉक्ड भी नहीं है. लैंड लॉक्ड किसको कहते हैं बताओ? Can you give the answer? What is a landlocked country? For example, हाँ, say loudly. Will you try? What is a landlocked country? जैसा वर्ड है ना वही उसका मीनिंग है. Landlocked country means a country which is surrounded surrounded by land. फिर से एक बार सुनो. A country which is surrounded by land on all sides and there is no coastline is known as landlocked country. For example, नेपाल. नेपाल को देखो तो नेपाल जो है यहाँ पर है नेपाल. तो इस नेपाल को कोई अपना कोस्ट लाइन नहीं है. उसका ओशन की तरफ कोई ओपनिंग नहीं है ना. वैसे ही यूरोप में देखे तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री है. बहुत सारे और भी कंट्री है जो जिसको कोस्ट लाइन नहीं है. तो जिसको जो सी के तरफ से ओपन नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? लैंडलॉक्ड कहते हैं. माने चारों तरफ से जो लैंड से घिरा हुआ है. एशिया में नेपाल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे एक मंगोलिया है चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया. तो वो भी लैंडलॉक्ड है. हर तरफ से लैंड से घिरा हुआ है. तो जिस कंट्री का कोस्टल लाइन है मतलब जो ओशन के तरफ ओपन है वो बहुत बड़े एडवांटेज में है कि वो ट्रेड के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से वो इजीली कनेक्ट हो सकता है. ठीक है ना. अब देखो नेपाल में बहुत सारे गुड्स जो आते हैं ना इधर से ईस्ट एशिया से वो इंडिया के थ्रू उसको लाना पड़ता है. इंडिया के थ्रू इंडिया के पोर्ट पे ये आते हैं और तब यहाँ से बाय रोड नेपाल भेजे जाते हैं. तो लैंडलॉक्ड कंट्री का ये डिसएडवांटेज है कि उनको अपना सी रूट मतलब अपना ओपन कोस्टल साइड नहीं है जो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत उनको वीक बनाता है और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उसको वीक बनाता है. तो अब तुम देखो तुम्हारा एक ये है जो नोट्स तुमको हमने भेजा है वो देख लो. हाँ ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे लॉन्ग आंसर में आता है. आर यू एबल टू सी? यस मैम. हाँ ये तो तुमको व्हाट्सएप में हम भेज दिए हैं और इसी को हम अभी जस्ट नाउ एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो इसके पॉइंट्स को हम रीडिंग कर दें. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. एनसीईआरटी बुक का देख लेना कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. व्हाई? तो आप क्या लिखेंगे कि द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ द बिलो मेंशन्ड रीजंस. The Trans-Indian Ocean route which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Strategic का meaning बता दिए of military importance है ना. मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखता है ये सी रूट. तो इस और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो
unlike landlocked country, India is not a landlocked country. It has an easy access to outside world. The ocean routes from East and Southeast Asia and Australia to Africa and Europe pass through the Indian Ocean. मतलब किसी भी तरफ जाना है, साउथ ईस्ट एशिया जाना हो, ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका जाना हो, तो वो सब इंडियन ओशन को हम यूज करते हैं। यहाँ तक कि यूरोप जाना है तो भी हम इंडियन ओशन के अरेबियन सी वाले पोर्शन को पार करके रेड सी में जाते हैं और तब मेडिटेरेनियन को चले जाते हैं, वो जो कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, इंडिया इज कनेक्टेड विथ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका थ्रू बोथ केप ऑफ गुड होप एंड स्वेज कैनाल। दोनों का लोकेशन हम तुमको दिखा दिए हैं। केप ऑफ गुड होप इज द लास्ट पॉइंट इन अफ्रीका एंड स्वेज कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में आते के ही साथ हम यूरोप के बहुत करीब आ जाते हैं। तो इस तरह से इंडिया को ये बेनिफिट है। तो इंडिया कैन ऑल्सो रीच कनाडा एंड यूएसए। देखो कनाडा एंड यूएसए थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देख रहे हो, मलक्का स्ट्रेट अभी दिखा दिए तुमको, किसके बीच में है बताओ? यस मैम। मलेशिया एंड सुमात्रा। मलेशिया एक कंट्री हो गया और सुमात्रा एक बहुत बड़ा सा आइलैंड है, वो दोनों बीच में नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर जो है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का यूज करते हुए हम ईस्टर्न एशिया तो जाते ही हैं और उस पूरे पैसिफिक को क्रॉस कर जाए तो कहाँ पहुंच जाएंगे? यूएसए के वेस्टर्न साइड में पहुंच जाएंगे, कनाडा और यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये सब मैम सीधा सीधा मैम नॉर्थ अमेरिका। हाँ, कनाडा और यूएसए दोनों क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट जाना है अगर, तो हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पार होके जाते हैं और पूरा पैसिफिक को क्रॉस करके जाते हैं। तो इंडिया इज फेवरेबली लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड्स हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब ईस्टर्न वर्ल्ड में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हम वेल कनेक्टेड हैं। ट्रेड के लिए हमारे पास बहुत ही कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस मतलब बहुत सुविधाएं हैं कि हम इजीली ओशन रूट को यूज कर सकते हैं और अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को बहुत ही फ्लरिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर तुम्हारा हो गया। यही लिखा हुआ है, किताब तुम्हारे सामने होगी, पेज नंबर 2, इंडिया एंड द वर्ल्ड। पेज नंबर 2 है ना, इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक, उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है पहले पैराग्राफ में, जिसको हम लोग पॉइंट में अलग कर लिए। ठीक है ना। और उसके बाद स्वेज कैनाल का डिटेल तो कल हो ही गया था, तो अब तुम नेक्स्ट पेज में आ जाओ। नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में हम आज क्या पढ़ेंगे कि हाउ इंडिया इज इम्पोर्टेंट सिंस एंशिएंट डेज, है ना, पुराने जमाने से ही इंडिया का क्या इम्पोर्टेंस रहा, ये हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ चुके, इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो बार डायग्राम है, आर यू सीइंग दिस? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तुम्हारी किताब में भी होगा, किताब में पेज नंबर 2 देख रहे हैं, ये साइज दिखाने के लिए है। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, जब पहले इसको स्टडी किए थे उस समय मई मंथ में। रशिया इज द बिगेस्ट इन साइज, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इज कनाडा, थर्ड इज यूएसए, फोर्थ चाइना, fifth is Brazil, and sixth is Australia, and India is the 7th largest country of the world. So India has also a good position regarding the size in the world. India is 7th largest country of the world. अच्छा, अब एक पेंसिल लेके बैठो, तो यहाँ पे कुछ कुछ मार्क करवाएंगे तुमसे। मैम। हाँ बोलो। मैम ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से साइज बड़ा होगा। एक बार और बोलो, तुम्हारी आवाज कट गई। मैम ये ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से मैम साइज में बड़ा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो एक कॉन्टिनेंट भी है ना, तो बड़ा है। अभी देखे ना कौन से पोजीशन पे है इंडिया का रैंक, बताओ ऑस्ट्रेलिया का। मैम 7th पे।
मैम इंडिया का 7 पे था और ऑस्ट्रेलिया का 6 पे था। Australia is 6th largest country of the world and it is a continent also and India is 7th largest. अब इसमें मैप में ना कुछ चीज बता रहे हैं, इसको नोट करते जाओ। कुछ वाटर बॉडी के नाम बता रहे हैं, ये लिखो। ये पॉइंटर दिख रहा है, बोलो। यहाँ पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ लिखो गल्फ ऑफ कच्छ। पेंसिल से लिखो तो गल्फ, GULF, गल्फ ऑफ कच्छ, KUCHCHA, गल्फ ऑफ कच्छ। इस वाटर बॉडी का नाम है गल्फ ऑफ कच्छ, जो लैंड के अंदर एकदम एंटर किया है, पेनिट्रेटेड। ठीक है ना। यहाँ पे एक क्रीक है, क्रीक मतलब ब्रोकन एरिया लैंड का, जो कि वाटर इसके अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है, तो इसको कहते हैं गल्फ। द नेम ऑफ दिस गल्फ इज गल्फ ऑफ कच्छ। लिख लिए। अब इधर आओ, दूसरा, दिस इज गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ खंबात। स्पेलिंग लिखो, गल्फ ऑफ KHAMBAT, गल्फ ऑफ खंबात। इसको एटलस में भी देखना। तो ये हम लोग कुछ फिर से बोलो, एक बार रिपीट कर दीजिए। गल्फ ऑफ खंबात, KHAMBAT, गल्फ ऑफ खंबात या खंबात भी कहते हैं, KHAMBAT, गल्फ ऑफ खंबात। तो ये बड़ा वाला जो गल्फ है इसका नाम हो गया गल्फ ऑफ खंबात, और ये जो नैरो गल्फ है इसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गल्फ एंड अ बे? बे और गल्फ में क्या फर्क है? दोनों में एक सिमिलरिटी है। बे एंड गल्फ आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स। बे हो या गल्फ हो, वो लैंड से 3 तरफ से घिरा हुआ है। उसका ओपन साइड एक ही होता है, ओपनिंग एक है, और 3 तरफ से वो लैंड से घिरा हुआ है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि बे हैज अ वाइडर ओपनिंग एंड गल्फ हैज अ नैरो ओपनिंग। वो ओपन साइड है ना, वो गल्फ का नैरो होता है। और बे का कैसा होता है? जैसे बे ऑफ बंगाल देखो कितना वाइड ओपनिंग है, यहाँ से वहां तक ओपन साइड बहुत चौड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं बे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ। ठीक है, समझ गए? बोलो तो, रिपीट करो तो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गल्फ एंड अ बे? Ma'am, difference between Gulf and a bay. A bay has a wider opening than a Gulf. हाँ, वेरी गुड। गल्फ हैज नैरो। हाँ, गल्फ हैज नैरो ओपनिंग, है ना। तुम यूएसए का मैप देखोगे ना, तो एक मिलेगा तुमको हडसन बे और एक मिलेगा गल्फ ऑफ मेक्सिको। नॉर्थ में देखोगे, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप का नॉर्दर्न साइड देखोगे तो मिलेगा हडसन बे, और साउथ ईस्टर्न साइड देखोगे तो मिलेगा क्या? मेक्सिको गल्फ। वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बे और गल्फ में क्या डिफरेंस है। गल्फ हैज नैरो ओपन साइड एंड बे हैज वाइड ओपन साइड। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पे भी पेंसिल से लिख लो, ये जो है इसका नाम है, ये एक नैरो एरिया ही है, इसलिए इस वाटर बॉडी का नाम रखा गया है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ लिख लो गल्फ ऑफ मन्नार। ये सब तुम्हारे लेसन में है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। गल्फ ऑफ मन्नार, MANNAR, गल्फ ऑफ मन्नार। और इस पूरे वाटर बॉडी को तो पाक स्ट्रेट कहते हैं। कल तुम लोग ये लिख लिए थे, द नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज नोन एज पाक स्ट्रेट। फिर ये देखो, ये क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड्स, है ना, लक्षद्वीप आइलैंड। और लक्षद्वीप के ही और साउथ में बढ़ोगे, इसके सीध में एकदम साउथ में बढ़ जाओ तो इधर कौन से आइलैंड है? मालदीव्स आइलैंड है। बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ आइलैंड एट द साउथ ऑफ लक्षद्वीप?
मालदीव आइलैंड। आइलैंड। मालदीव आइलैंड ना हमारे नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं, मालदीव आइलैंड। तो देयर आर 2 आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज, एक श्रीलंका हो गया, ये भी आइलैंड है, और एक इधर मालदीव हो गया, जो कि बहुत सारे आइलैंड है। ठीक इसी तरह से जैसे लक्षद्वीप में आइलैंड है ना, इससे भी थोड़े बड़े, लेकिन फॉर्मेशन उसका सेम है। जैसे लक्षद्वीप कोरल फॉर्मेशन से बना है ना, वैसे ही ये मालदीव भी कोरल फॉर्मेशन से बना। ठीक लक्षद्वीप के साउथ में कौन सा आइलैंड है? मालदीव आइलैंड। और मालदीव का कैपिटल क्या है, कौन बताएगा? बोलो। Do you remember what is the capital of Maldives? नोट कर लो, माले, MALE, माले। Capital of Maldives is Malé. What is the capital of Lakshadweep? Aditya? कावरती। कावरती। लक्षद्वीप आइलैंड कैसे बना है? कोरल डिपॉजिट से बना है, जो हम लोग सेकंड लेसन में पढ़े हैं। फिर हम लोग सेकंड लेसन को बहुत डिटेल में करेंगे, है ना। अभी हम लोग ये फर्स्ट लेसन आज हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे तो। और ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गया। फर्स्ट ग्रुप इज अंडमान ग्रुप, सेकंड ग्रुप इज निकोबार ग्रुप, और इसके लास्ट आइलैंड का नाम है इंदिरा पॉइंट। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान ग्रुप में सदर्न पार्ट में है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चलो तब हम लोग फिर से आ जाए। अब यहां से देखो, India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land route are much older than her maritime contacts. Maritime मतलब oceanic, है ना। तो इंडिया का रिलेशन वर्ल्ड से बहुत पुराना है, लेकिन जो लैंड रूट है वो ज्यादा पॉपुलर कॉमन रहा है, कॉमनली यूज्ड हुआ है। लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स मींस कॉन्टैक्ट थ्रू द ओशनिक पार्ट, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा कि लैंड रूट ज्यादा ओल्ड है। इस कॉन्टैक्ट से क्या फायदा होता है कि देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। If we are well contacted with the sea route or land route, that means we are well connected with other parts of the world. और other parts of the world से connected होंगे तो क्या फायदा होता है कि knowledge, ideas का exchange होता है ना। और वही देखो यहाँ पे, these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishads and Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal systems thus could reach many parts of the world. अब तुमको पूछा जाएगा अगर कि what are the contributions of India to the world, तो तुम ये सारे एग्जाम्पल लिखोगे, है ना। कि द आइडिया ऑफ उपनिषद, रामायण, ये सारे जो हमारे एपिक्स हैं, माइथोलॉजिकल एपिक्स भी हैं, और ये सब दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए हैं। अरबिक में, पर्शियन में, इंग्लिश में, बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज में इनका ट्रांसलेशन हुआ है, और ये दुनिया के सभी हिस्सों में गए हैं। लोग इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, है ना। और डेसिमल सिस्टम इंडिया का ही डिस्कवरी है। फिर जीरो जो है मैथमेटिक्स में, वो भी इंडिया का ही है कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। और इंडिया ने क्या क्या एक्सपोर्ट किया है एंशिएंट डेज से ही, स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज। स्पाइसेस मतलब गरम मसाले, मसलिन मतलब फाइन कॉटन क्लॉथ, जो कि इंडिया का स्पेशलिटी था। उस समय इंडिया बांग्लादेश सब एक साथ था, जिसमें ढाका में ये बनता था। और merchandise means other items of trade were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture. अब देखो, इंडिया ने वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों को इन्फ्लुएंस किया, और इंडिया में भी वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। जैसे ग्रीक स्कल्पचर दिखाई देता है,
the architectural style of dome and minarets, है ना। डोम स्टाइल के जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो इंडिया में है। जैसे तुम दिल्ली में बहुत सारा देखे होगे, हुमायूं टॉम, फिर आगरा में है सारे वो सब, है ना, फतेहपुर सिकरी, उधर वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे ऐसे हैं, दिल्ली में जो डोम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और मिनरेट्स भी है, मिनरेट्स जैसे कुतुब मीनार, है ना। ये सब वेस्ट एशिया की देन है, वेस्ट एशिया का कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, क्योंकि वहां के लोग आए थे और इंडिया में इन सब चीजों का ये हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ। अब ये देखो बॉक्स में जितने क्वेश्चन हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको मैप देख देख के बना लेना, ठीक है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखोगे तो कौन कौन से कंट्रीज है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। चाइना और नेपाल और भूटान किधर है, इंडिया के नॉर्थ में है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, और म्यांमार और बांग्लादेश ये ईस्ट में है, ठीक है। म्यांमार का कैपिटल बताओ। नेपिडो। और म्यांमार का ओल्ड नेम बताओ। यांगोन। म्यांमार का ओल्ड नेम है बर्मा, है ना। अब ये बॉक्स में देखो, बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द provinces and the princely states. Provinces were ruled directly by British officials who were appointed by the viceroys. Princely states were ruled by local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. मतलब जो princely states थे ना, वो वहाँ किंग मोनार्की था एक तरह से, हालांकि वो सब के सब ब्रिटिश के ही अंडर में थे, और ब्रिटिश जो यहाँ रूल करते थे उसको प्रोविंसेस कहते थे, ठीक है। तो अब ये लेसन हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब ये लास्ट लाइन हम पढ़ दें, फिर मेरा टाइम, हम लोग का ये क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा। और ये लास्ट लाइन में दोनों कॉलम में जो लिखा है ना, सब कुछ हम मैप में बता चुके हैं, इसको तुम खाली ध्यान से पढ़ते चलो। देखो, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये जो दोनों हैं वो क्या है, इंडिया के सदर्न आइलैंड नेबर्स हैं। क्वेश्चन में भी एक दिया हुआ है कि विच आर द टू आइलैंड नेबर्स ऑफ इंडिया, तो यू विल राइट श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द आइलैंड नेबर्स ऑफ इंडिया इन इट्स साउथ। Sri-Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and the Gulf of Mannar, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार दिखा दिए तुमको मैप में, तुम वहां पेंसिल से नोट कर लिए हो ना। और यहाँ देखो इस पैराग्राफ में आ जाओ। इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। जब एशिया का मैप देखोगे ना, तो इंडिया लगता है कि एक अलग ज्योग्राफिकल यूनिट है। क्यों लगता है, क्योंकि वो नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है और इधर साउथ में पूरे ओशन से ये सेपरेटेड है, तो इंडिया का एक अलग आइडेंटिफिकेशन है एशिया के मैप में, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें इंडिया के साथ और भी कुछ कंट्रीज शामिल हैं, जिसको मिलाते हुए हम क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब क्या कहते हैं, हिमालय के साउथ में जितने भी कंट्रीज है ना, जैसे नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान, इतने को मिलाते हुए कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया इसमें सबसे बड़ा है और एक डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल यूनिट की तरह दिखाई देता है एशिया के मैप पर, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो in this manner today we have completed the revision work of this lesson। और तुमको हमने एक होमवर्क में दिया था, इसको फिर से हम याद दिला दें कि एक ऐसा पॉलिटिकल मैप तुमको लेना है और इसमें सारे स्टेट्स का नाम ऐसे लिखना है, ऐसे पॉलिटिकली डिवाइडेड मैप लेना और इसमें सारे स्टेट्स का नाम लिख देना। और एक और चीज ऐड करना, इसका कैपिटल जहां है वहीं पे डॉट मार्क करना और तब उसका कैपिटल लिख लेना, है ना। जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र है तो यहाँ आप डॉट मार्क करेंगे एकदम कोस्ट पे, जहाँ ब्रोकन कोस्ट है ना वहाँ एक डॉट मार्क करेंगे और वहाँ लिखेंगे मुंबई, क्योंकि वो उसका कैपिटल है। फिर यहाँ जैसे बिहार लिखा हुआ है तो बिहार की इस जगह पे डॉट मार्क करेंगे और लिखेंगे पटना। तो तुमको इसमें क्या ऐड करना है कि स्टेट के नाम के साथ साथ कैपिटल ऐड कर लेना है, ठीक है। और सारे ये ओशन सब दिखा दोगे
कि अरेबियन सी किधर है, वेस्ट बंगाल, इंडियन ओशन, और ये जो नेबरिंग कंट्रीज है, म्यांमार है ना, भूटान, चाइना, भूटान, और यहाँ ये तिब्बत वाला एरिया है चाइना का, दिस इज नेपाल, दिस इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर पे कुछ और भी कंट्रीज हैं जो रशियन पार्ट से अलग हुए हैं, वो यूएसएसआर से अलग हुए थे, कजाकिस्तान, ये सब इधर देख लेना, वो भी है, और चाइना का तो एक बहुत लंबा बॉर्डर है यहाँ पे। तो ये सारे नेबरिंग कंट्रीज मार्क करते हुए बना लेना। ये है बांग्लादेश, देखो ये इतना पोर्शन जो है ये बांग्लादेश हो गया। तो कभी कभी जब कोलकाता ये सब दिखाने के लिए आता है ना, तो बच्चे को यहाँ दिखाना चाहिए वेस्ट बंगाल में, और यहाँ दिखा देते हैं, बस वो रॉन्ग हो जाता है। ये तो दूसरा कंट्री हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेसन। इफ एनी क्वेरी आस्क। आदित्य, मान्या, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. हुआ है written work, you complete your written work, okay?